Draw the diagram. Diagram is given in front of you, right? And these are the exterior angles you can see. This is 125 given, this is x given, and this is given 125 once again. You can see it. Okay, there are 3 sides of triangle and all the 3 sides are extended and your exterior angles are given to you. You have to find the value of x. Last time we wrote the property. Do you know the property of exterior angles? Please raise your hand. Do you know, beta? Write down. Write the property. Sum of exterior angles. Sum of exterior angles. जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है इट इज इक्वल टू इन अ पॉलीगॉन. ओके, हम पॉलीगॉन की बात कर रहे हैं. अभी ये नहीं सोचना कि ये तो क्वाड्रिलेटरल नहीं है तो हम फॉर्मूला क्यों लगाएं. डोंट थिंक ऑफ दैट. ये जो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है कि एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है वो किसी भी पॉलीगॉन के लिए एप्लीकेबल है. तो आपकी साइड्स जो है वो 4 से कम भी हो सकती हैं, 4 से ज्यादा भी हो सकती हैं. Okay, chapter is quadrilateral, but this property holds for all the polygons. So, in a polygon is equal to 360 degree. अब ये आपके पास polygon है, triangle एक polygon होता है, you know it. Okay, apply this property. Very good. Find the value of x. सिर्फ exterior angles को देखना है आपने. 8th class में आपके सारे क्वेश्चन जो है they roam around the exterior angles. Very good. Please find it. और जी का हो जाएगा. देखिए start the B also because ऐसे क्वेश्चंस आपने किए हुए हैं ऑलरेडी. Some angles which are given to you. Have you found A part? Yes. Please, very good. Please tell me. 110. 100. Very good. This is का निकल रहा है 110. X is equal to 110. आपने किए होंगे ऐसे questions? Raise your hand, please. Who have found? Wonderful. Please, such questions are very, very important in 8th class. ज्यादा से ज्यादा जो फिगर्स होती हैं उनके एक्सटीरियर एंगल के बारे में हम बात करें. ठीक है, अभी एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर बच्चे अप्लाई कर लेते हैं, बट क्वाड्रिलेटर के अलावा अगर कोई फिगर आ जाए then they feel like how but to apply. So please remember this sentence is very very important. इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है. तो अभी हम जो क्वेश्चंस करेंगे साथ में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे so that you can apply it in any question. ठीक है, डोंट क्रैम कि हमने एक क्वेश्चन कर लिया तो वैसे सेम एग्जाम में आएगा तो कर लोगे, नहीं आएगा तो यू विल बी फॉरगेटिंग. You should have deep knowledge of the topic so that you can apply it in any kind of question. Okay, now see the second figure also beta. B part. Again a polygon is drawn. We don't bother कितनी साइड्स है उसकी, हमें उसकी जरूरत नहीं है. हमें सिर्फ ये पता है कि एक पॉलीगॉन बना हुआ है और उसके एक्सटीरियर एंगल्स हमें दिए हुए हैं और मिसिंग वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. राइट? Who know it, start doing. Exterior angle. One thing I want to tell you beta. These questions are very simple, but गलती जो होने के चांस होते हैं that is
कि यू हैव टू सी कि हमारी जो पॉलीगन बना है उसमें कितनी साइड्स है. 1 2 3 4 5 5 साइड्स आर देयर. You have to count. There should be 5 exterior angles. ठीक है, let us see it. I am writing it as 1. This is 2. This is 3. This is 4. This is 5. आपको पता होना चाहिए हम 5 एंगल्स की बात कर रहे हैं. We are talking about 5 angles. ओके, वही 5 एंगल्स जो है हमारे, हमने यहाँ पे लिखने हैं. Let us write down all. प्लस 60 प्लस देन नीचे वाला आपको 20 डिग्री दिया हुआ है, प्लस और दो एंगल कौन कौन से लिखेंगे हम? 90 degree. You know, sign is already drawn there. 90 degree plus 90 degree. Count कर लो. 1 2 3 4 5. You have written only 5 angles because this polygon is of 5 sides. By mistake, if you are writing more number of angles, by mistake, by repetition हो जाती है. That means your question is wrong, and you can immediately check yourself कि मेरी गलती कहाँ पे हो रही है. Okay, बेटा. So again, very simple question. Very good. Who are getting 50 degree? Raise your hand. 50 degree. Wonderful. X is equal to 50 degree. Everybody do. Directly answer नहीं लिखना. Calculate yourself. This calculation will be helpful in your exam also. Yes. Next question is, how many sides does a regular polygon have if the measure of an exterior angle is 24 degree? Read the question 2 times. Very important question. How many sides does a regular polygon have if the measure of an exterior angle is 24 degree? बहुत important information इस question में क्या दी हुई है? Read it 2 times, 3 times. बहुत important information which you are going to apply in the answer. Done. Done? Please wait, please wait. Let everybody read it. Raise your hand who have done. हाथ खड़े करो, very good. Many are finding it difficult, right? Please underline. Okay, hands down कर लो. I will ask you बेटा. Regular को पहले तो underline कर लो. It is regular. ठीक है, regular दिया हुआ है. Regular is telling you कि all the angles are equal. All angles are equal. बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है. जनरली आप 8th क्लास में अपनी एंगल्स पे फोकस करते हो. क्वेश्चन रोम्स अराउंड द एंगल्स ओनली, राइट? How many sides does a regular polygon have with the measure of an exterior angle? One exterior angle is given to you. Is equal to 24 degree. You don't know कि ये polygon कौन सा है. You don't know how many sides are there. You cannot draw it क्योंकि आपको sides नहीं पता है. Then what would you do? From B section, the child who has done. Can you explain me how have you done, beta? क्या method apply किया? Yes. हाँ जी बताओ बेटा. Well, because all sides of a regular polygon is equals to 360, and we have to find the sides, so we have to divide Beta, angles, not sides. angles. So we have to divide 360 by 24. 24. That is fine. But ये चीज आपको आती है इसलिए आपने instant कर लिया, and that is correct also. But what about the other children? और किसको आता है? Please raise your hand. क्या आपने क्लास में ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है? अगर नहीं किया, I am telling you how to do basically. Okay, he has told correct answer क्योंकि उसको पता है कि 360 में डिवाइड करेंगे और आंसर आ जाएगा. बट क्यों करेंगे 360 से? दैट इज द प्रॉब्लम. ठीक है, आपको यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है. प्लीज इसको सपोज कर लो. लेट नंबर ऑफ साइड्स बी n. ये रेगुलर पॉलीगॉन है, उसकी नंबर ऑफ साइड्स हमने निकालनी है. तो नंबर ऑफ साइड्स हमने इसकी सपोज कर ली है कि वो n है. तो इसके एक्सटीरियर एंगल कितने होंगे?
नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितने होंगे? n n. Yes, आपको logically you are writing. There is no doubt behind this, whatever you are writing. Sides are n, we have supposed. It means angles are also n. कौन से angles? Exterior angles, जिनकी हम बात, ठीक है? तो इसका मतलब sum of exterior angles क्या है? Is equal to 360. तो पता ही आपको, ये फॉर्मूला था, अभी अभी आपने अभी पिछले क्वेश्चन में भी लिखा था, ठीक है? और हर एक एंगल 24 डिग्री का है, हर एक एंगल 24 डिग्री का है, और आपके पास n एंगल्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 24 डिग्री प्लस 24 डिग्री प्लस 24 डिग्री अप टू n टाइम्स जितने भी साइड्स होंगी, जितने भी एंगल्स होंगे, इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसमें कोई डाउट है इस स्टेप में आपको कि हमने बाहर वाले सारे एंगल्स को प्लस किया, कितनी बार प्लस किया? जितनी उसके टोटल एंगल्स थे। तो वो क्या बन गया? 24 into n, and you have found n is equal to 360 by 4. उसका आंसर बिल्कुल ठीक था, उसने बताया कि हम डिवाइड करेंगे, लेकिन बाकियों को पता होना चाहिए कि why we are dividing। ठीक है, प्लीज इसको अंडरस्टैंड करना बेटा। तो n is coming out to be 15, जो आपको ये बता रहा है नंबर 15 है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी को डाउट है तो प्लीज अभी पूछ लो मेरे से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर चैप्टर। नंबर ऑफ साइड्स जो आपको निकालनी थी इज इक्वल टू 15। इफ यू हैव डाउट प्लीज स्टैंड एंड आस्क। कोई स्टेप नहीं समझ आया तो। आपने जो कंसेप्ट बेटा सीखा है उसको अप्लाई करना है, ठीक है? लर्न नहीं करना कभी भी। आज याद रखोगे कल भूल जाएगा, लेकिन जो कंसेप्ट आप अंडरस्टैंड कर रहे हो वो चीज कभी नहीं भूलेगी। ओके, प्लीज रिमेंबर। एनीथिंग यू वांट टू आस्क, एनी स्टेप? किसी को समझना है, अभी पूछना है कि कौन सा स्टेप कैसे आया? एंड दैट बॉय बेटा, दैट फ्रॉम बी सेक्शन बच्चे, यू टोल्ड मी कि 360 को हमने 24 से डिवाइड करना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग कि वो क्यों करना है हमने? yes प्लीज रेज योर हैंड एवरीवन जिसको समझ आ गया ये क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आगे भी आने वाला है। वंडरफुल, वंडरफुल बेटा। नाउ प्लीज लिसन हियर एवरीबॉडी। अभी हम अगला क्वेश्चन नहीं पिक कर रहे हैं। अगर आपको यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल गिवन है और यहाँ पे नंबर ऑफ आपको एंगल्स निकालने हो कि कितने एंगल्स हैं इसके, अभी तो हमने साइड्स निकाली है, तो क्या आप एंगल्स भी निकाल सकते हो कि कितने एंगल्स हैं इस पेपर के? कर पाओगे कि नहीं? अभी तो सेम ही मेथड अप्लाई करोगे ना। अगर आपको नंबर ऑफ एंगल्स पूछा हो कि टोटल एंगल्स कितने हैं, एक 24 डिग्री के, बताओ कि बाकी एंगल्स जो है वो कितने एंगल्स कितने हैं, और वो रेगुलर पॉलीगॉन है। रेगुलर आपको ये बता रहा है कि सारे एंगल्स इक्वल है, ठीक है? और उसके बाद अपना मेथड अप्लाई करो, फिर उसको डिवाइड कर दो और फिर आपके पास एन आ जाएगा। क्योंकि एन हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स थे, एन ही हमारे पास नंबर ऑफ एंगल्स थे, क्योंकि वो रेगुलर था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि साइड्स और एक्सटीरियर एंगल नंबर जो होगा वो सेम होगा, ओके? जब वो रेगुलर होगा तो। चल लेट्स डू नेक्स्ट वन। प्लीज इसको रिवाइज भी करना। कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज, ठीक है, रिकॉल करो। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। मिसिंग वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। इन एवरी फिगर आपने किए होंगे ऐसे वाले क्वेश्चंस, ठीक है? एंड इन क्वेश्चन कोई लिमिट नहीं है, कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यू जस्ट हैव टू अप्लाई द नॉलेज।
मेनी चिल्ड्रन मैंने देखा है कि चाहे वो 8th की में हो, 9th में हो, 10th में हो, दे रिकॉल बैठ के ना सोचना शुरू कर देते हैं कि ये क्वेश्चन मैंने कॉपी में किया हुआ है कि नहीं, ये क्वेश्चन मैम ने करवाया था क्लास में कि नहीं. डोंट थिंक ऑफ दैट, डोंट वेस्ट योर टाइम इन थिंकिंग दैट. वही टाइम आपने ये सोचने में लगाना है अपना कंसेप्ट जो सीखा हुआ है उसको मैं कैसे अप्लाई करूं. कौन सी चीजें इस चैप्टर में यूज हो रही थी, 5-6 चीजें, वही 5-6 चीजों में से कौन सी चीज इसमें अप्लाई. ओके बेटा, फोकस ऑन दैट, क्योंकि क्यों क्वेश्चन करने की हैबिट होनी चाहिए, आपने अपना कंसेप्ट लगाना है. नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड एंड दिस इज अ पैरेललोग्राम. बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी हुई है, ABCD आपको पैरेललोग्राम गिवन है. तो पैरेललोग्राम गिवन होती है तो हम जल्दी से उसकी प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं विदाउट थिंकिंग ऑफ रोम्बस, रेक्टेंगल, दिस दैट, जितनी भी फिगर्स पड़ी हैं. ठीक है. व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम? हु हैव डन, रेज योर हैंड. काफी ने कर लिया होगा. ओके, जल्दी से रिकॉल कर लो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या क्या की थी हमने. अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. ठीक है. फर्स्ट प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स मतलब A and C, B and D, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. और क्या होता है, एक और प्रॉपर्टी एंगल की क्या होती है, अभी हमने एंगल निकाला है तो एंगल की प्रॉपर्टी के बारे में सोचेंगे. व्हाट इज द अदर प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम? वेरी गुड. किसको याद है? प्लीज राइट डाउन. Adjacent angles are supplementary. Adjacent angles are supplementary. What are the adjacent angles? अपोजिट तो पता चल गया आपको. एडजेसेंट कौन से होते हैं? साथ. पास पास, जिनकी एक लाइन कॉमन हो, जिनकी एक साइड कॉमन हो. जैसे 50 एंड x लिख लो यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल x एंड 50 डिग्री, ये दोनों एडजेसेंट. ऐसे ही आपको और एंगल भी बहुत दिख रहे होंगे. y एंड 50 डिग्री भी एडजेसेंट है. ठीक है. ये चीजें आपने सारी की हुई हैं बट यू फॉरगेट इट. जब अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती है फिर ये चीजें माइंड से स्किप हो जाती हैं. डू अ गुड प्रैक्टिस ऑफ सच क्वेश्चंस. फाइन. जल्दी से मुझे बता दो अभी क्या होने वाला है यहाँ पे, कौन कैसे एक्स वाई जेड कैसे निकलने वाली है. वेरी गुड, स्टार्ट डूइंग. जिनको आता है. जरूरी नहीं है कि हमें पहले एक्स ही निकालना है. अगर आपको वाई दिख रहा है तो वाई निकाल लो, जेड समझ आ रहा है तो जेड निकाल लो, एक्स बाद में निकाल लेना. रेज योर हैंड हु हैव फाउंड. कोई एक एंगल जिसने निकाल लिया है वाई जेड एक्स में से. वन थिंग मोर आई वॉन्ट टू टेल यू, क्योंकि आपको ये एंगल चाहिए होगा, इसको आप 1 रिप्रेजेंट कर लो अपने आप. ठीक है. जो एंगल मिसिंग है उसको आप 1 रिप्रेजेंट कर सकते हो. नो नीड टू राइट ABCCBD एंड सो ऑन. ठीक है. उसमें थोड़ी गलती भी हो जाती है केवल लिखने में. यू हैव कम टू नो दैट 1 इज इक्वल टू, व्हाट इज दैट, 1 इज इक्वल टू कितना आएगा? 1 will be equal to 50. 50 degree. Reason, you have to write the reason also. Opposite angles are equal. Geometry में whatever chapter we do, कोई भी स्टेप जो है बिना रीजन के नहीं आता. Opposite angles are equal. Angle 1 is, so you have found angle 1, right? Now you have two properties in front of you, parallelogram की. Apply the second. What is that? 50 degree plus x is equal to 180 degree. Adjacent angles. पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है. राइट डाउन इन शॉर्ट फॉर्म, दीज आर एडजेसेंट एंगल्स. टीचर विल कम टू नो बिकॉज आप उसको 180 डिग्री बता रहे हो तो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. यू कैन फाइंड एक्स.
x निकालो और उसके बाद उसका फिर आगे थर्ड वाला एंगल पे निकालो. नाउ यू कैन डू इट. ऐसे क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के आते हैं बिकॉज यू आर फाइंडिंग 3 एंगल्स. वेरी गुड. व्हाट आर यू गेटिंग बेटा? x इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 130. 130 degree. Everybody has come to know. And y also 130. 130 because opposite angles. ठीक है, इसका रीजन लिख दो, opposite angles and so on. When you have to find three letters in a figure, 3 आपको अल्फाबेट्स निकालने x y z, तो वो 3 मार्क्स का होगा. 2 एंगल्स निकालने होंगे तो 2 मार्क्स का होगा. It is like that. Okay. Second figure. Second figure, please draw it. These are all parallelograms. ठीक है. अब ये देखने में आपको रोमबस लग रहा होगा, किसी को कुछ और काइट लग रही होगी, लेकिन ये एक पैरेललोग्राम है. गिवन है तो आपने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ही लगानी है. ठीक है. राइट डाउन वट एवर इज गिवन. एक्स जेड, सॉरी जेड आपका नीचे है, ऊपर आपके पास y है. अपनी फिगर ड्रॉ करो. It is y and this is 30 degree. नीचे आपको एक इम्पोर्टेंट जो ये साइन जो दिया हुआ है, ये आपको ये बता रहा है कि ये 90 डिग्री. You have to find x, y and z. वेरी गुड. अप्लाई योर नॉलेज. फटाफट से एक एक एंगल, हर एक अल्फाबेट का आपको 1 मार्क मिलना है. स्टार्ट डूइंग. जो जो आपको समझ आती जाती है निकालते जाओ. टर्न बाय टर्न. थिंक फॉर अ सेकेंड. फिगर को ध्यान से देखो. जितने भी एंगल्स आपने आज तक पढ़े हैं उनको अप्लाई करो. आई एम गिविंग यू हिंट ओवर हियर. जो जो एंगल्स आपने पढ़े हैं यू कैन अप्लाई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ठीक है. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपको पता है कौन से होते हैं. यू कैन अप्लाई ऑल्टरनेट एंगल्स. बाकी तो आपको पता ही है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज. यू मस्ट बी नोइंग बेटा, जो आपको 90 डिग्री दिया हुआ है उसके बिल्कुल साथ क्रॉस में आपको x दिख रहा है. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x एंड 90? व्हाट काइंड ऑफ एंगल्स आर दे? Vertically opposite. Vertically opposite. You can write down x is equal to 90 degree. Vertically opposite angle. रीजन इसका लिख दो. एंड यहाँ पे आपको 1 मार्क मिल गया. क्या आपको? Now you think of the x तक पहुंच गई हो तो y भी निकल जाएगा. Yes. ठीक है. बहुत इजीली आपको पता है x प्लस y प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. व्हाट शुड आई राइट द रीजन? क्यों है तीनों का 180 क्यों है? Sum of a triangle property. These are angle sum property. Angle sum property, right? हमें पैरेललोग्राम के अंदर एक ट्रायंगल भी मिल गया जिसके अंदर हमें एंगल फाइंड आउट करना बहुत इजी लग रहा है. तो हियर वी आर फाइंडिंग 90 plus y plus 30 is equal to 180 degree. You can find y is equal to, और उसके बाद z भी निकाल पाओगे फटाफट से. वेरी गुड. अपनी थोड़ी एफर्ट लगाओ फिर आपको ज्यादा समझ आएगा. अगर सिर्फ कॉपी डाउन करते रहोगे फिर आपको सिर्फ याद करना पड़ेगा क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन ऐसे हुआ था, वो क्वेश्चन ऐसे हुआ था. 60 degree. Yes, it is fine. Move further. अगले क्वेश्चन पे चलो. सॉरी z पे चलो. 60 डिग्री है, ये आपका आ चुका है. 1 मार्क आपको यहाँ मिल गया. एंड नाउ कम टू
जेड, जेड के बारे में आपको क्या पता चल रहा है? They are adjacent angles. They are not at the time. ध्यान से इसको देखो और ध्यान से देखो, मैं आपको सॉरी माई सो सॉरी। ठीक है, इन दिस फिगर वाई यू हैव कम टू नो कि वाई ये आ चुका है। अब मैं एक यहाँ पे पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, यू कैन सी हियर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है, एक डायगोनल ड्रॉ किया है। ध्यान से इसको फिगर को देखो पहले। आपको ये पता है कि ये दोनों पैरेलल है, दिस एंड दिस अपोजिट साइड्स पैरेलल है पैरेललोग्राम में। तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं और ये एक ट्रांसवर्सल है बीच में, तो क्या ये आधे वाले एंगल आपस में इक्वल होंगे? 1 = 2? Yes. Yes. कौन से एंगल्स बन रहे हैं ये? Alternate angle. ऑल्टरनेट एंगल। तो सेम आपके यहाँ भी बन रहे हैं इस फिगर में, यू कैन सी दीज आर पैरेलल लाइन, ठीक है, एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल। तो फिर आपके ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे y and z. Yes. Okay, so you can say z is equal to y equal to 60 degree. Reason alternate angles. जो एंगल आ गए आपके, after finding it, after writing it, please write a note. जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा पैरेललोग्राम का जिसमें डायगोनल ड्रॉ किया होगा, इट इज फिक्स, हमेशा वहां पे फिक्स है कि अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम है और उसमें डायगोनल ड्रॉ करने के बाद हमारे आधे आधे जो एंगल है ना 1 और 2, वो हमेशा आपस में इक्वल होंगे। और वो कौन से एंगल बनेंगे? ऑल्टरनेट एंगल्स। पूरा एंगल तो आप निकाल ही लेते हो बोल के कि हाँ अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, सप्लीमेंट्री है, एडजेसेंट एंगल, पूरे पूरे एंगल जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला था। प्रॉब्लम इज अबाउट दिस आधे आधे एंगल जो कि डायगोनल के आसपास होते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं 3 ड्रॉ करती हूँ तो यहाँ पे 4 आएगा, तो हमारा क्या होगा? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। कौन से एंगल्स बनेंगे? ऑल्टरनेट एंगल्स। जब भी आपको पैरेललोग्राम में ऐसे डायग्राम में हाफ हाफ एंगल दिए हो ना, हाफ हाफ, आई शुड नॉट से हाफ हाफ, दे आर डिवाइडेड। हो सकता है एक बड़ा हो एक छोटा हो, जरूरी नहीं कि वो 60 बन रहा है तो 30-30 बनेंगे या 50 बन रहा है तो 25-25 होंगे, नॉट दैट। डायगोनल क्या कर रहा है? एंगल को कट कर रहा है इन 2 पीसेस, राइट। वो 2 पीसेस कौन से डिग्री के हैं वो हमें कैलकुलेट करके पता चलता है। तो यू कैन राइट डाउन दे आर इक्वल, दैट्स इट। क्यों इक्वल है? क्योंकि हमें ऑल्टरनेट एंगल्स की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर लो कि ये एक्सटेंड हो रहा है, ये एक्सटेंड हो रहा है और ये हमारा एक ट्रांसवर्सल बन रहा है, ठीक है। इसको नोट फॉर्म में फिगर भी ड्रॉ कर लो और लिख भी लो। एग्जाम में जब भी आपको डायगोनल वाला क्वेश्चन आए, यू हैव टू अप्लाई दिस प्रॉपर्टी। डायगोनल कुड बी अदर वे, जैसा मर्जी हो सकता है, ठीक है, चाहे वो ऐसा वाला हो तब भी। प्लीज रिमेंबर, हमारे जो ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो ट्रांसवर्सल और लाइन दोनों को टच करने चाहिए। ओके अब जैसे आप देख रहे हो कि ट्रांसवर्सल है तो 1 और 2 ट्रांसवर्सल को टच कर रहे हैं, सिमिलरली 3 और 4 भी ट्रांसवर्सल को टच कर रहे हैं। अगर वो दूर है, मैं इनकी बात करूं दूर वाले एंगल्स की, तो वो नहीं इक्वल होंगे, सिर्फ वही वाले जो उनके लाइंस और ट्रांसवर्सल रिलेटेड है। एवरीबॉडी हैज रिटन दिस प्रॉपर्टी? Yes. ये काफी बार क्वेश्चंस में आते हैं एंड यू कैन रिमेंबर इन सच वे कि हमारी ऑल्टरनेट वाली जो है प्रॉपर्टीज में लगेगी। नेक्स्ट वन, थर्ड वन यू कैन डू, दिस इज सिंपल, पैरेललोग्राम दिया हुआ है, एक्सिस एंगल दिया हुआ है, वेरी सिंपल। थर्ड वन यू कैन डू। लेट अस डू नेक्स्ट वन, थोड़ा डिफिकल्ट जो है 4th क्वेश्चन हियर। 4th क्वेश्चन इज the measure of two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:2.
Again, very important question. Diagram is not given to you, but you have to draw it. क्योंकि हमने जब प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होती है, डायग्राम ड्रॉ करने, जैसे हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, immediately property will come into our mind. Question number 4. The measures of two adjacent angles of a parallelogram. Roughly कोई भी parallelogram draw कर लो, उसको कुछ भी लिख लो, A B C D P Q R anything, आपकी अपनी फिगर है, अपनी नॉलेज के लिए ड्रॉ कर रही हो. Two adjacent angles की रेशियो हमें दी हुई है 3:2. What are the adjacent angles here? We talked about अभी कि A and B adjacent है. Yes. या फिर D and C, या फिर B and C, या फिर A and D. ठीक है, पेयर्स बन रहे हैं. एडजेसेंट एंगल्स पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे. अकेला कोई हम नहीं बोलेंगे कि एक एंगल को एडजेसेंट एंगल. तो पेयर में हमारे पास एंगल्स हैं A and B. Let us take it. A ratio angle B is equal to 2. Whatever is given, हमने उसको लिख लिया. उसके बाद measure of each angle of parallelogram. हर एक एंगल का हमें मेजरमेंट निकालना. Let angle A is equal to 3x, angle B is equal to 2x. जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन आता है, चाहे वो आपके लीनियर इक्वेशन में हो, एज वाला हो, चाहे वो एंगल्स वाला हो, you know it, we talked about always 3x and 2x. ठीक है, उससे हमारा क्वेश्चन इजी हो जाता है. you know बेटा, जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन आता है, हम ऐसे क्वेश्चन शुरू करते हैं. चैप्टर कोई भी हो आपका, क्योंकि आपको रेशियो दी हुई है. रेशियो को हमने नंबर फॉर्म में लिखना है अपने सामने कि किस क्या रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ए और बी. कई बच्चे इसको 3A या 2A ले लेते हैं, वो भी कर सकते हो आप. बट टेक इट सेम, ये नहीं कि 2A एंड 3A एंड 2B. टेक द सेम दैट मेजरमेंट विद दैट. ओके, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी? यू नो इट. दे आर एडजेसेंट. गिवन है आपको, अप्लाई करो. A plus B is equal to 180 degree. Reason आपको पता है, adjacent angles. We are putting the values. 3x plus 2x, 5x is equal to 180. Find the value of x. 36. 36. So everybody should do the calculation for a little faster. अब आप 9th में जाने वाले हो. ठीक है, थोड़ा सा आपका रफ कॉलम रेडी रहना चाहिए हर एक. क्विकली करके देख लो. अगर आप मेंटली नहीं करोगे तो फटाफट से उसको लिख के देख लो. 180 को 5 से डिवाइड करना है. सो सिंपल. कटिंग जो करनी है अभी रफ में करके फटाफट से यहाँ पे फाइनल आंसर लिख दो. ओके, 36 आ गया. अभी बाकी एंगल आपके निकल जाएंगे, है ना. ए निकल जाएगा, बी निकल जाएगा, सी और डी निकाल लो फटाफट से. वेरी गुड. सी सेक्शन, middle row beta. Girls, one of you come forward. Have you found x, y, z? Sorry, A, B, C, D. All the 4 angles have you found? C section, middle row बच्चे. फर्स्ट बेंच पे जो गर्ल्स हैं. कोई एंगल निकाला है इसमें से आपने? ओनली ए और बी बता दो. ठीक है, बाकी बाद में बता दूंगा. Have you found बेटा? नहीं किए तो कोई बात नहीं, बैठ के करो आप. आर यू डूइंग इट? Sit down, sit down, कंटिन्यू करो. वेरी गुड. ए सेक्शन, फर्स्ट बेंच बॉय, मिडल रो. वेरी गुड, जल्दी से आ जाओ.
चारों में से कौन सा एंगल निकाला? टेल मी एनीवन. He is doing. Okay, everybody do. I'm giving you time. This is also important question, ratio wala. कोई डाउट है? यू कैन स्टैंड एंड आस्क. ओके, ऐसे कॉपी डाउन नहीं करना कि बस लिखते जाओ और फिर मल्टीप्लाई करके मेरे को आंसर बता दो. नॉट लाइक दैट. आस्क मी कि कोई स्टेप नहीं समझ आया तो. From E section, who has found angle A? Raise your hand. Very good. Please say, Aju beta, that girl can come. Yes. Must have found all. Angle A equal to 100. 108. Is it so? Okay. Have you found B also? Yes, 72 degree. 72. तो फिर C कितना होगा बेटा? C 108 degree. 108. Why? Opposite angles. Because they are opposite angles. ठीक है, ऑटोमेटिकली वो इक्वल आ जाएंगे. ये दो एंगल निकालने थे, बाकी दो एंगल तो इक्वल करके ही आ जाएंगे. वेरी गुड बेटा. प्लीज सिट डाउन. Now raise your hand. Who have found? Same answer किनका आ रहा है? हाथ खड़े करो. Very good. Very good. Very good. आपको 9th में भी करना है क्वाड्रिलेटरल्स का चैप्टर. ओके, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस अभी 8th में अच्छे से समझ लो so that you can apply further in next class. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. क्वेश्चन नंबर 5. Again, the diagram is not given to you. Oh, sorry, diagram is given. Explain how this figure is a trapezium. We are talking about a trapezium now. ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टीज रिकॉल करो माइंड में, क्या क्या पढ़ा था. ट्रेपेजियम इज ऑफ सच काइंड जिसमें वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होती हैं. यू नो इट. एम एन एंड के एल. फिगर इज गिवन टू यू एज इट इज. आपको ड्रॉ करनी है. एंड दिस इज 80 डिग्री. You have to tell how this figure is a trapezium. किसी भी फिगर को ट्रेपेजियम बताने के लिए उसकी प्रॉपर्टी मैच करनी चाहिए. और प्रॉपर्टी होती क्या है? ट्रेपेजियम की कौन सी प्रॉपर्टी होती है? क्या चीज आपको पता होगा ट्रेपेजियम के बारे में जो ये बताएगा कि यस दिस इज कंफर्म. Two opposite angles are parallel and two are not. Two sides are parallel. One pair of sides are parallel. You can say. लिखा था आपने भी पहले भी. ठीक है, वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल. दैट इज फाइन. अब ये एंगल्स दिए हुए हैं हमें. हमें ये तो बताया नहीं कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है. दे हैव नॉट टोल्ड अस इन द क्वेश्चन. सिर्फ ये बताया हुआ है कि एंगल्स हैं. ये 100 डिग्री है, ये 80 डिग्री है. अगर हम ये बता दें इसमें कि एम एन जो है वो के एल के पैरेलल है तो हम बता देंगे कि दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम. यहां तक हमने पहुंचना है. कैसे हम बताएं कि ये दोनों पैरेलल है? हाउ कैन वी से? You know angles are given to you 180. फिर से इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करो. अपने आप डॉटेड से इमेजिन करो. These are extended lines. This is a transversal. इमेजिन करो. डॉटेड से एक्सटेंड करो कि टू पैरेलल लाइंस है आमने सामने वाली. हमने बोला नहीं है कि वो पैरेलल है. अभी वहां तक पहुंचना है हमने. इमेजिन करो कि दे आर सच और एक ट्रांसवर्सल है. तो उसके हिसाब से आपके पास क्या होगा? आपको दिख रहा है कि 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आ रहा है 180 डिग्री. ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि एम एन एंड के एल आर टू लाइंस कट बाय एम एल. हम एम एल बता रहे हैं कि दो लाइनें हैं, उनको एक लाइन काट रही है. और साथ में हमने ये बता दिया कि इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो एंड इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री.
अभी अभी हमने ऊपर लिखा कि उनका सम 180 डिग्री है। अगर सप्लीमेंट्री है इसका मतलब हम बता सकते हैं कि के एल जो है वो एम एल एन के पैरेलल है। जब आपने 7th में ये क्वेश्चन किया, चैप्टर किया था पैरेलल लाइंस वाला, जिसमें ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल किए थे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल किए थे, साथ में ये भी एक थर्ड प्रॉपर्टी पड़ी थी कि इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो हमने ये बता दिया कि इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री है, इसलिए लाइंस पैरेलल है, तो इसलिए दिस इज अ ट्रिपेजियम। KLMN is a trapezium. कोई भी क्वेश्चन प्रूव करने के लिए आपके पास लॉजिक होना चाहिए, आपके पास प्रॉपर रीजन होना चाहिए, ताकि कोई गलती ना निकाले। क्वाड्रिलेटरल के जो क्वेश्चंस हैं वो एक मेथड से नहीं निकलते हैं। वन चाइल्ड इज फाइंडिंग अदर मेथड, अदर चाइल्ड इज अप्लाइंग अदर मेथड। ठीक है, आपका लॉजिक ठीक होना चाहिए, रीजन आप ठीक लिख रहे हो, देन योर आंसर इज करेक्ट। यू हैव किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपके पास बहुत सारे मेथड है। Okay, you have to be one of them कि हाँ I can do like this, your partner is doing by other method, you do by other method, because आपकी अपनी सोच है। ठीक है बेटा, तो go in that way. Let us do last question. If you do this question, then further question you can do yourself also, फिर practice करना इसको, and once you go through these all, जितने question आज किए हैं पहले उनको practice करना एक बार और, then you can do new questions. Next question is find the measure of angle P and S if SP is parallel to RQ. जब भी पैरेलल दिया हो, थिंक ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स, थिंक ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, प्रॉपर्टी लगाओ उनकी, शुरू करो। फिगर ड्रॉ कर सकते हो, दिया हुआ है आपको, स्ट्रेट लाइंस दी हुई है तो आपको भी स्ट्रेट ड्रॉ करनी पड़ेंगी। ये 90 डिग्री गिवन है, and P we have to find, S we have to find, this is given 130 degree, and this is given Q, and this is given R. Okay, एग्जाम में जब फिगर नोट डाउन करते हो शीट से, इट शुड बी नीटली ड्रॉन। ठीक है, स्केल की जरूरत नहीं है, अपने पेन को टाइटली पकड़ के अच्छे से फिगर बना लो ताकि उसकी लेबलिंग ठीक दिखे। Many children they draw with the pencil, फिगर को पेंसिल से ड्रॉ करते हैं और पेन से फिर आंसर लिखते हैं। एक तो थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है उसमें, पेन से ड्रॉ करो और नीटली ड्रॉ करो। ठीक है, तो here SP is parallel to RQ, SP is given to you parallel to RQ। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी हुई है, जल्दी से आपको ये रिकॉल हो जाना चाहिए कि जब हमारी टू लाइंस पैरेलल होती हैं तो क्या क्या इक्वल होता है। ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। पता है ना ये सारी प्रॉपर्टीज, जल्दी से लिख लो इनको फटाफट। फर्स्ट वन इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ऑल्टरनेट एंगल्स। सेकंड इज 1 इज इक्वल टू 3, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। C is angle 1 plus angle 4 is equal to 180 डिग्री। ये तीन प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हुई हैं ऑलरेडी। कोई भी अप्लाई करो, जो आपको चाहिए क्वेश्चन में उसको अप्लाई करो। ऑल्टरनेट एंगल्स, दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, दीज आर इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पे नोट लिख लो ऊपर, चीजें आपकी काम आएंगी क्वेश्चंस में, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आप इसको कर पाओगे। ठीक है, नॉलेज तो आपको है, अभी आपको रिकॉल कब होगा, जब आप बार बार चीजों को अपने सामने लिखोगे, यूज करोगे।
एग्जाम में फिर ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, जितनी प्रैक्टिस करोगे एग्जाम में यू विल फाइंड लेस टाइम टू डू द क्वेश्चन, टाइम सेव हो जाएगा आपका। ठीक है, पेपर लेंदी नहीं होता, आपकी स्पीड स्लो होती है एक्चुअली। स्पीड स्लो करोगे तो ऑटोमेटिकली फिर वो पेपर लेंदी लगता है। सो व्हाट आर यू गोइंग टू अप्लाई हियर बेटा, आउट ऑफ दीज थ्री you have to find P and S. आपको ये भी दिया हुआ है, फाइंड मेजर R एंड इज देयर मोर देन वन फाइंड। ओके, चलो एक मेथड से ही निकाल लो, कोई बात नहीं, वट एवर मेथड यू आर अप्लाइंग। बेटे देखो, रेशो हैंड किसको आता है ये क्वेश्चन, कुछ माइंड में आ रहा है आपको हाउ टू डू? ओके देन everybody straight look here, see it is SP is parallel to this, पहले आपको ये दिख रहा है कि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो फिर पैरेलल लाइंस का अप्लाई करो कुछ भी, जो आपको ये दिख रहा है कि इनमें से अप्लाई करो। कैन यू टेल दिस इज 90 डिग्री? बोल सकते हो कि ये 90 डिग्री है? राइट डाउन एंगल S प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि हमें SP पैरेलल टू RQ गिवन है। जब लाइंस पैरेलल हैं तो उनकी इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। राइट डाउन इंटीरियर एंगल्स, इसका मतलब है कि R तो आपको पहले से 90 गिवन था, तो S भी 90 हो जाएगा। फिर आगे चलो, S पता चल गया आपको, S एंड P भी फाइंड आउट करना है आपको। हमने तो बोला कि इन दोनों का सम 90 है, तो क्या इन दोनों का सम, सॉरी 180 है, इन दोनों का सम 180 बोला हमने कि दीज आर इंटीरियर एंगल्स, क्या इन दोनों का भी हो सकता है 180 बेटा, P एंड Q का? P एंड Q का सम 180 डिग्री हो सकता है? ये दोनों पैरेलल लाइंस है, चलती आ रही हैं, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो क्या इन दोनों का सम भी हो सकता है 180 P एंड Q का? Yes. हो सकता है P प्लस Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रॉपर्टी लगाई है आपने, चाहे उसको 10 बार लगाओ आप, नोबडी विल मेक इट रॉन्ग। ठीक है, ऊपर भी लगा लिया आपने, नीचे भी सेम प्रॉपर्टी लगा रहे हो तो उसको कर। P इज यू हैव कम टू नो, Q आपको पता है तो P आप फाइंड आउट कर सकते हो। P और S ही निकालना था बस हमें, है ना? आपका ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था, बट आपको रेडी रहना है फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, अभी सारे क्वेश्चन आपके पैरेललोग्राम के नहीं आएंगे कि पैरेललोग्राम गिवन है, आप कहोगे कि लाइंस पैरेलल हैं और फिर एडजेसेंट एंगल्स इक्वल हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। एक तो वो टाइप के क्वेश्चन हो, एक टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं कि एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री, एक टाइप का आपका क्वेश्चन आता है इस टाइप का, ना ये पैरेललोग्राम है ना ये रेक्टेंगल है, बस एक सिंपल फिगर है जिसमें टू लाइंस पैरेलल दी हुई है, पैरेलल है तो फिर हमने ट्रांसवर्सल ये बता दिया कि वो हमने ये प्रॉपर्टी लगा दी। हैव यू रिटन दिस बेटा रिवीजन के लिए? Yes. वेरी गुड बेटा। प्लीज इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ट्राई करना। आज हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज लगाई हैं अलग अलग क्वेश्चंस में, अप्लाई सच ऑल प्रॉपर्टीज इन योर other questions also. And I will suggest you beta, I'm going to close this class now.
आई एम सजेस्टिंग जितनी भी प्रॉपर्टीज आज हमने लगाई हैं उनकी एक लिस्ट बना लो सेपरेटली, ठीक है। क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही करना है आपने, उनमें अप्लाई क्या क्या किया, मेक अ लिस्ट ऑफ दोज पॉइंट्स। आपके पास 5-6 पॉइंट्स की एक लिस्ट बन जानी चाहिए अलॉन्ग विद द डायग्राम कि ये प्रॉपर्टी में हम अलग अलग क्वेश्चन में लगा सकते हैं। ओके बेटा, चलो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। बाय बाय।